Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine. Earlier we had talked about the meaning and significance of teaching learning aids, and today we are going to discuss its types including projected and non-projected. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो डिफरेंस है बिटवीन प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग लर्निंग एड्स की, दैट इज़ नॉट जस्ट टेक्निकल बट रादर दैट रिफ्लेक्ट्स अ डीपर शिफ्ट in how education moves from direct experience towards mediated technology driven learning. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। जो नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स हैं, दीज आर ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट फंडामेंटल टूल्स ऑफ टीचिंग that solely depends on the natural vision, or we can say that depends on our direct perception, जहाँ electricity या devices जो है that are not required but rather it is based on our direct interaction. And जो core idea है behind these non-projected aids, that is what you see is physically present in front of you. That means ये जो aids है, these are tangible, these are immediate as well as human centered. And जो major examples हैं non projected aids की, that includes first जो है that is the graphic aids. जो graphic aids है, these are the visual simplifications of information, like for example charts and postures जो कि show करते हैं relationship like the food chain, water cycle. Similarly मैप्स एंड ग्लोब्स जो कि डेवलप करते हैं स्पेशल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट्स, एज वेल एज डायग्राम्स जो कि एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एटम एक्सेट्रा. सो ये जो ग्राफिक एड्स हैं, दे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू सिंपल विजुअल पैटर्न्स विच मेक्स लर्निंग फास्टर एंड मोर क्लियरर. ठीक. सेकेंड आर डिस्प्ले बोर्ड्स. डिस्प्ले बोर्ड जो है, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्प्ले बोर्ड्स इंक्लूडिंग ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड, जो कि हमें मोस्ट पावरफुल ट्रेडिशनल टूल्स देखने को मिलते हैं. एंड ये जो बोर्ड्स है, दीज बोर्ड्स आर यूनिक बिकॉज ऑफ दियर रियल टाइम एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग या टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन. एंड ये जो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड्स है, दीज बोर्ड्स अलाइन विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, जहाँ स्टूडेंट्स जो है दे एक्टिवली बिल्ड द नॉलेज ग्रेजुअली. ठीक. सिमिलरली बुलेटिन बोर्ड्स जो हैं दैट आर आल्सो देयर, जो कि डिस्प्ले करते हैं स्टूडेंट के वर्क को और जो कि रीइंफोर्स करते हैं कंसेप्ट्स को विजुअली ओवर टाइम. Similarly, flannel or magnetic boards जो हैं that are also there, which include the movable pieces, जो कि हमें ideal देखने को मिलता है for sentence formation, story telling, early childhood education, जो कि encourage करते हैं students को for active participation. ठीक. थर्ड जो है, थर्ड आर 3-dimensional aids. 3-dimensional aids जो है, these aids provide depth or real as well as physical interaction. Like जो 3-dimensional aids हैं, these aids include models like replica of real objects, like for example pictures of 3D models of 3D images of Earth, DNA, globe, या specimens like for example real objects including the leaf, rock, coin, या dioramas like mini scenes like for example battlefields या ecosystems. So ये जो 3-dimensional aids हैं, they also support experiential learning, जहाँ students जो हैं they just don't see but they also feel and explore. ठीक है. 4 are activity aids. ये जो aids हैं, these aids goes beyond objectives into real life experiences. Like for example activity aids जो है
सम एक्टिविटी एड्स जो है दैट आर लाइक फ्री फील्ड ट्रिप्स या रोल प्ले या ड्रामेटाइजेशन, चूँकि हमें मोस्ट पावरफुल फॉर्म देखने को मिलता है लर्निंग के, थ्रू विच जो चिल्ड्रंस हैं दे लर्न थ्रू लर्निंग बाय डूइंग। एंड ये जो एक्टिविटी एड्स हैं, दीज एक्टिविटी एड्स connect students directly to the experiential philosophy and practical understanding. ठीक है। Now talking about the projected aids. Projected aids जो है, these aids represent the technological evolution of education. And जो core idea है behind projected aids, that is basically the indirect perception. And it is based on the idea that what you see is mediated through a device. And ये जो aids हैं, these aids use light, lenses और digital systems जो कि एक्सपेंड करते हैं रीच को एज वेल एज जो कि ऑल्सो एनहेंस करते हैं क्लैरिटी को। एंड सम मेजर एग्जाम्पल्स जो है प्रोजेक्टेड एड्स के दैट आर लाइक, फर्स्ट जो है दैट इज़ दी स्टिल प्रोजेक्शन। स्टिल प्रोजेक्शन एड्स जो है, देर आर वेरियस स्टिल प्रोजेक्शन एड्स और नॉन मोशन एड्स, लाइक फॉर एग्जांपल ओवरहेड प्रोजेक्टर जो कि यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंसीज को, जहाँ टीचर जो है दे राइट वाइल फेसिंग स्टूडेंट। सिमिलरली स्लाइड प्रोजेक्टर्स जो है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मोशन प्रोजेक्टेड एड्स की, जिसके थ्रू जो हाई क्वालिटी इमेजेस है वो शो की जाती है। एंड ये जो प्रोजेक्टर्स हैं इनको मेनली यूज़ किया जाता है फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशंस। सिमिलरली एपीडियास्कोप जो है, इट इज़ ऑल्सो ए नॉन मोशन प्रोजेक्टर एड। एंड ये जो प्रोजेक्टर है, दिस प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट्स बुक पेजेस और इमेजेस डायरेक्टली। And this is also an early attempt to scale visibility. ठीक। Second are the motion projection और audio visual projectors. ये जो projectors हैं, this is where जहाँ learning जो है that becomes dynamic and immersive. That is through educational films, documentaries और through animations. And ये हमें ऑल्सो पावरफुल देखने को मिलते हैं जो कि टीचर्स यूज़ करते हैं टू शो प्रोसेसेस लाइक फॉर एग्जांपल वोल्केनिक इरप्शन। एंड इनको ऑल्सो यूज़ किया जाता है टू एक्सप्लेन इनविजिबल फिनोमिनाज लाइक सेल्स, एटम्स। एंड ये जो टू प्रोजेक्टर्स हैं, दीज प्रोजेक्टर्स ऑल्सो एड इमोशनल एंगेजमेंट। ठीक। थर्ड आर डिजिटल एंड इंटरैक्टिव प्रोजेक्शन। ये जो era है, दिस इज़ बेसिकली द करंट स्टेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। मीन्स इन टूडेज टाइम्स जो डिजिटल एंड इंटरैक्टिव प्रोजेक्टर्स हैं इनको यूज़ किया जाता है इन दिस मॉडर्न era. एंड देयर आर वेरियस डिजिटल एंड इंटरैक्टिव प्रोजेक्टर्स लाइक फॉर एग्जांपल LCD प्रोजेक्टर्स जो कि हम कनेक्ट कर सकते हैं टू दी कंप्यूटर्स एंड जिनको हम यूज़ करते हैं मेनली टू डिस्प्ले प्रेजेंटेशन, सिमुलेशंस एज वेल एज वेबसाइट्स। सिमिलरली इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स या स्मार्ट बोर्ड्स जो हैं, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल एंड इंटरैक्टिव प्रोजेक्टर्स जो कि हमें टच बेस्ड देखने को मिलते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स हैं दे इंटरैक्टेड डायरेक्टली थ्रू दी स्मार्ट बोर्ड्स। एंड ये जो इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स या जो स्मार्टफोन्स हैं, ये हमें यूज़ देखने को मिलता है टुगेदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एज वेल एज टीचिंग एंड लर्निंग का। सिमिलरली विजुअलाइजर जो है, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल एंड इंटरैक्टिव प्रोजेक्टर और दीज आर ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट कैमरास। ये हमें यूज़फुल देखने को मिलता है फॉर लाइव प्रोजेक्शन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स। एस्पेशली हमें यूज़फुल देखने को मिलते हैं फॉर डिमॉन्स्ट्रेशंस, जहाँ स्टूडेंट जो हैं दे एक्टिवली शो, जहाँ स्टूडेंट जो है उनको दिखाया जाता है हाउ थिंग्स कैन हैपन, जहाँ स्टूडेंट जो हैं दे ऑल्सो
experiment, as well as they also read books. ठीक. Now talking about the big shift, that is the magnification of influence. जो transition जो shift है from non-projected AIDs towards the projected AIDs, it is driven by one of the powerful idea of scaling learning. Like for example, अगर एक मैप होता था इन ए बुक, उसको खाली एक स्टूडेंट देखता था, वाइल जो प्रोजेक्टेड मैप है उसको 100 स्टूडेंट्स देख सकते हैं एट अ टाइम. दिस इज बेसिकली कॉल्ड द मैग्निफिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंस. एंड व्हाई दीज प्रोजेक्टेड एड्स डोमिनेट टुडे? बिकॉज ऑफ देयर स्केलेबिलिटी. लाइक वन टीचर जो है वो पढ़ा सकता है हंड्रेड्स ऑफ लर्नर्स को. सेकेंड, बिकॉज ऑफ देयर विजुअलाइजेशन ऑफ इनविजिबल. लाइक जो प्रोजेक्टेड एड्स है इनके थ्रू हम दिखा सकते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. इनके थ्रू हम आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को, या थ्रू दीज टूल्स वी कैन आल्सो एक्सप्लोर द स्पेस. So that is why these are impossible with traditional aids alone. Similarly, third जो है that is also the control over learning. Like through these projected aids we can pause, we can replay, or we can also zoom, or we can saw any video through slow motion. So this is how जो learning है that becomes adaptive and flexible. ठीक. Fourth one, that is the access to global content. Through these aids we can watch online videos, as well as we can engage in virtual lab simulations जो कि क्लासरूम को बॉर्डरलेस बनाते हैं. ठीक. एंड हियर इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कि जो प्रोजेक्टेड एड्स है दे डिड नॉट रिप्लेस नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, but rather they extend their capabilities. Like for example, physical health model जो है that gives touch and structure, and 3D animation of blood flow जो है it gives movement and internal perspective. So we can say जो projected aids है they provide जो non projected aids है they provide texture, while जो प्रोजेक्टेड एड्स है दे प्रोवाइड परस्पेक्टिव. ठीक. सो ये जो एवोल्यूशन है, दिस एवोल्यूशन, दिस शिफ्ट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ जॉन डेवी, हु emphasized, who focuses on he heavily stressed that की जो लर्निंग है that should move from concrete to abstract and experience towards the reflection. ठीक. सो फाइनल कंक्लूजन जो है दैट इज़ कि जो डिफरेंस है बिटवीन द प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कि दैट इज़ एक्चुअली ए स्टोरी ऑफ एजुकेशनल एवोल्यूशन. जहाँ नॉन प्रोजेक्टेड एड्स जो है दे ग्राउंड लर्निंग इन द रियलिटी, और जो प्रोजेक्टेड एड्स है दे एक्सपेंड लर्निंग बियॉन्ड द रियलिटी. एंड टुगेदर both ही जो projected and non-projected aids हैं they together creates a complete learning ecosystem. So this is how जो non-projected aids हैं they help students to touch reality, while जो projected aids हैं they help them to go beyond it. ठीक. So guys that is it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए. So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.